میں نے آہستہ سے پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے پرسکون بھاری آواز آئی، قمردین۔ دروازہ کھل کر بند ہو گیا۔ اندھیرے میں درمیانے قد اور دبلے پتلے بدن کا ایک آدمی اندر آ گیا۔ وہ بھی بنگالی لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ میرے قریب چٹائی پر بیٹھ گیا اور مجھ سے پنجابی میں بولا، تمہیں بنگالی نہیں آتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر تم دوسرے لوگوں کے لیے اس وقت تک گونگے ہو جب تک مشرقی پاکستان کی سرحد عبور نہیں کر جاتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی کتنی ہے؟ میں نے جیب سے 100 کے 7 نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے سارے نوٹ اٹھائے، ان کو جوڑ کر موم بتی سی بنائی اور اپنے پاجامے کے نیفے میں ڈال لی۔ پھر جیب سے بھارتی کرنسی کے روپے والے 4 نوٹ مجھے دیے اور کہا انہیں اپنے پاس رکھو، بھولنا نہیں کہ تم گونگے ہو۔ اتنے میں نیچے کسی موٹر کے آہستہ سے رکنے کی آواز سنائی دی۔ قمردین نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ فلیٹ سے نکل کر اس نے دروازے پر تالا لگایا اور ہم تنگ و تاریک سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار نما گلی میں آ گئے۔ ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی بجلی کے کھمبے سے ذرا آگے کھڑی تھی۔ اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اور قمردین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی کا انجن گرجا اور گاڑی زکریہ اسٹریٹ کے علاقے کی نیم تاریک سنسان گلیوں سے نکل کر لوئر چیت پور روڈ پر اڑنے لگی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم بھی چپ تھے۔ رات کے سناٹے میں گاڑی ویران سڑکوں پر تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس زمانے میں بھی کلکتہ بہت وسیع اور دور دور تک پھیلا ہوا شہر تھا۔ 1 گھنٹے تک ہماری گاڑی شہر کی سڑکوں پر چلتی رہی۔ پھر مضافاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ اب ہماری دونوں جانب کھیت تھے، ان میں ناریل کے درخت پچھلی رات کی ٹھنڈی ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ ہم ایک ایسی سڑک پر آ گئے جہاں کارخانوں کی چمنیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آسمان پر ستارے اب پھیکے پڑنے لگے تھے۔ اس دوران میرے ساتھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ موٹر گاڑی کارخانوں کی چمنیاں پیچھے چھوڑ کر ویران علاقے میں آئی تو قمردین نے سگریٹ سلگایا اور ڈرائیور سے پنجابی میں کہا، میرا تھیلا ساتھ رکھ لیا تھا؟ ہاں جی۔ ڈرائیور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈرائیور کوئی غیر نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کوئی بات کرنا مناسب خیال نہ کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ میری آنکھیں سلگ رہی تھیں مگر نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ پاؤں پھٹنے لگی تو گاڑی ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہاں ہوا میں خنکی تھی، نم ہوا تو ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ ہماری موٹر اب ایک کچی سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ بائیں جانب ٹیلی فون کے کھمبے دور تک چلے گئے تھے۔ ہم نے کئی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے پل عبور کیے۔ دن پوری طرح نکل آیا اور دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تو چھتری دار جھاڑیوں کے ایک ٹیلے کے قریب سے نکل کر موٹر ایک جگہ رک گئی۔ آگے بانس کے جھنڈ میں ایک چھوٹا سا راستہ گھنے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ قمردین نے تھیلا اٹھایا اور ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ ہم پیدل چلنے لگے اور جنگل میں کافی دور تک آ گئے۔ یہاں چند ایک کھپریل کی جھونپڑیاں بھی نظر آئیں۔ قمردین مجھے ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے ایک جھونپڑی کے پاس گیا۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ اندر سے ایک دیہاتی بنگالی باہر آیا جس نے صرف ایک میلی سی دھوتی پہن رکھی تھی۔ قمردین اس سے بنگلہ میں بات کرنے لگا۔ پھر وہ اسے لے کر میرے پاس آیا۔ بنگالی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہمیں ایک خالی جھونپڑی میں لے گیا۔ یہاں ہم نے چاول مچھلی کھائی، کالی کڑوی چائے پی۔ قمردین نے مجھے بتایا کہ یہ بنگالی مسلمان ہے اور ہمارا اپنا آدمی ہے، مگر اسے یہی بتایا گیا ہے کہ تم گونگے ہو اور تمہیں سرحد پار کرانی ہے۔ یہ آدمی آج رات تمہیں اپنے ساتھ سرحد پار کروانے لے جائے گا۔ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے تمہاری رقم میں سے 500 روپے دے دیے ہیں، باقی 200 روپے تم اپنے پاس رکھو۔ قمردین نے 100 کے 2 پاکستانی کرنسی نوٹ میرے حوالے کر دیے۔ ہم جھونپڑی میں لیٹ گئے۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، شام تک سوتا رہا۔ میں جاگا تو قمردین وہاں پر نہیں تھا۔ باہر شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قمردین ایک اور جھونپڑی سے نکل کر میری طرف آیا۔ اس نے تھیلا مجھے دے کر کہا، اس میں ترکاری ہے، یہ تم ایلی کے اسٹیشن ماسٹر کے سپرد کرو گے۔ یہ تھیلا اور ترکاری ہماری نشانی ہے۔ ایلی کا اسٹیشن ماسٹر ہمارا اپنا آدمی ہے۔ ایلی مشرقی پاکستان کی سرحد پر ہے۔ ایلی کا اسٹیشن مشرقی پاکستان میں اور اسٹیشن ماسٹر
नजरल का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद किसी की समझ में नहीं आ सकती। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कलकत्ते की तरफ चला गया। मेरे बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया। उसके बाद उसने इशारों से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। उसने एक मैली कुचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से उसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नुकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात उसी नफ़रत की बिना पर हुए। अब फातेह अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फ़ौजें मगरबी बंगाल की सरहदों पर पहुँच गई थीं और पूरी 5 डिवीज़न फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नकलो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ नज़र आ रहे थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहता है। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियाँ और नाले अबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियाँ दिखाई दीं। क्योंकि मुझे गूंगा और बहरा बना दिया गया था, इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों ही में बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरबी बंगाल का सरहदी गांव ही था। यहाँ से हिली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहाँ भारतीय फ़ौजों के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजाअत और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया कि ख़ुद भारतीय फ़ौज के जर्नैलों को पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी और जज्बे शहादत का एतराफ़ करना पड़ा। हम बिन गांव से काफ़ी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयाँ 4 बजा रही थीं कि एक टीले की ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। उसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दरे में दाखिल हो गया। यह दरा एक तंगोतारी घाटी से गुजरकर एक खुश्क नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची ऊंची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गया, जहां मेरी मुलाकात हिली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरल से हुई। मैंने उसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकाल कर गौर से उसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का इशारा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्ता बिछा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में हो रहा था, इसलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपये का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट उसने हिली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुँह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे उसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकालकर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसने एक डब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोशिश ना करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सराही और एक खाली नारियल दिया, जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डब्बे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डब्बों के पीछे छुप कर बैठ गया। बंद डब्बे के दर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था।
2 घंटे बाद डब्बा खिसकना शुरू हुआ और उसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हिली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही, उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। उसने कई पोल अबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। यहाँ से चली तो उसकी रफ्तार खासी तेज़ हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे ना कट जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थीं। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया। आखिर एक हल्के से धचके के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफार्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थीं। अब सबसे बड़ा मसला डब्बे से बाहर निकलने का था। डब्बा बाहर से बंद था। जब तक उसे कोई बाहर से ना खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाज़ें आने लगीं। ये शायद रेलवे के मुलाजमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डब्बे के पहियों पर हथौड़े की ज़रब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दीं जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हों। मैं डब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डब्बे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज़ लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आज़ादी का पैगाम था। जब आवाज़ें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफ़ी फासले पर एक डब्बे का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने मौके गनीमत जानकर डब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफार्म पर चढ़ गया। प्लेटफार्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफार्म पर आ गया जहाँ कुछ बंगला के मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गुठड़ियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेज़ी में कोमलापुर लिखा हुआ नज़र आ गया तो मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कोमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं 2nd क्लास की इंतज़ारगाह में दाखिल हो गया। यहाँ भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमज़ोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। यहाँ मैंने एक बंगाली हुजाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला के बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफार्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपये के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर बड़ा शहर था और अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज़ का किराया जमा करूँ और ढाका से लाहौर चला जाऊँ। लेकिन हालात के रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म की सनसनीखेज़ वाक़यात का ताना बाना बुन रही थी मुझे उसकी खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा और सिगरेट सुलगाकर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आधी सिगरेट नोच नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर दिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान के शहरों के नामों से
वाकिफ़ तो था मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले कि टिकट चेक कर प्लेटफार्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार डेवड़ी में पहुँच गया। सुबह हो चुकी थी, मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल रिक्शे और मोटर गाड़ियाँ मुसाफिरों को ला रही थीं। साड़ी पोश बंगला और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थीं। मैंने एक फ़ौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सलमट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश इखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कहीं काम भी मिल जाए। मैंने शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। बीच में सब्ज़े की एक रोश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाईं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। उस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। उससे पहले मुझे बाज़ारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नज़र आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नज़र आए। रिक्शा वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो दान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शा वाले को उधर चलने का इशारा किया। मैंने इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर कहीं आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर बैठकर भिंडी तोरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक अल्लाह यार खान और मगरबी पाकिस्तान का एक उधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादर भट्ट साहब कालीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुरे के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठीनुमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी। ऊपर उनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेज़ी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कालीन खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सलमट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था। लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूँ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।